Hi, I'm Prem Jyotish. Hi, I'm Meher Basin and you are watching One on One with Prem Jyotish. Hello and welcome to One on One with Prem Jyotish Ji, and I'm your host Meher Basin. Ours is a very comprehensive show based on the science of numerology and astrology with the world-renowned numerologist and astrologer Shri Prem Jyotish Ji. Hello Prem Ji and welcome to the show. Thank you, Mir, and thank you for your email and response. I hope my guidance is helping everyone out there. And today, Premji's taken his time out to tell all the viewers exactly what is really going on with your horoscope, with your birth chart, with your life, because today is a very special email dedicated episode where you've written into us, and I'm going to read out your emails, and Premji is going to give his best remedies, guidance, and solutions. So let's find out who sent in the first email for today. और Premji, आज की पहली email जो आई है, this is from Mr. NV. Date of birth is October 31st, 2007. Place of birth is Everett, Washington. Time of birth is at 7:50 early morning. This is a concerned parent who wants to know about the son, saying he is going to college next year and they want your advice as to what field he should master in and where do you see he'll be most successful in. So they want you to let them know what is the correct field for him, where do you see his future going, and any remedies for him. देखिए मिस्टर एनवी, अगर आप 31 अक्टूबर 2007, इनका एवरेट वाशिंगटन 7:50 AM का बर्थ है जी, इनका तुला लगन है जिसमें इनकी मिथुन राशि है, लीब्रा राइजिंग है, मून साइन जो है इनका जेमिनाई है। लीब्रा का लॉर्ड होता है वीनस। वीनस इज रिलेटेड टू फाइनेंस, साइंस एंड टेक्निकल थिंग्स। तो अगर ये इन 3 फील्ड में ये अगर अपने करियर को रखें तो उसमें इनको बहुत बड़ा सक्सेस मिल सकता है। एंड दशा इनको शनि की चल रही है इस वक्त। सैटर्न में मून है, तो मून एंड सैटर्न एक तरह से विश योग क्रिएट करते हैं। तो दैट्स व्हाई सम टाइम यू गेट कंफ्यूजन कि मैं लाइफ में करूं क्या। तो ही इज गोइंग थ्रू दैट मोड विच इज गोइंग टू बी देयर टिल नेक्स्ट ईयर जुलाई। बट द बेस्ट पार्ट इज शनि जो है वो मित्र होता है शुक्र का, जो इनकी कुंडली का राइजिंग लॉर्ड है। तो इट मीन्स ये दशा जो है इनकी एजुकेशन के लिए बेस्ट है, जो कि 2033 तक बहुत ही स्ट्रॉन्ग टाइम है इनके लिए टू एजुकेट हिमसेल्फ। और इनका जो मास्टर प्लैनेट है जो वीनस है वो इनकी जन्मपत्री में 11th हाउस में बैठा हुआ है। तो अगर आपका 11th हाउस होता है हमारा इच्छा पूर्ति का स्थान, वेयर वी कैन जो भी हमारी डिज़ायर्स होती है उसको वो फुलफिल कर देता। तो इट मीन्स अगर आप जो भी लाइफ में बनना चाहते हो आप वो करोगे तो वो हो जाएगा इनकी लाइफ में। सिर्फ राहु बैठा है 5th हाउस के अंदर जो एंग्शियस रखता है, कंफ्यूजन क्रिएट करता है, वो एक नेगेटिव ड्रॉबैक है, तो उसको रेक्टिफाई करना चाहिए इनको। So Premji, what are the remedies that you tell him to do? देखिए, एक तो इनको डायमंड पहन के रखना चाहिए 1 कैरेट का अपनी राइट हैंड की मिडिल फिंगर में। प्रिंसेस कट उसको फ्राइडे के दिन सुबह 7 से 8 बजे के बीच में पहने, जिससे जो है लग्नेश लॉर्ड जो है वो इनका स्ट्रांग हो जाए। एंड राहु 5th हाउस में है तो इनको एक 50 ग्राम का एलिफेंट लेना चाहिए, सॉलिड हो, जिसके अंदर जिसकी ट्रंक ऊपर में हो, और उसको किसी आप ग्लास जार में डाल दें और उसमें गंगा जल फिल करके इनके रूम में या इनके टेंपल में रख दिया जाए, तो उससे राहु इम्पैक्ट भी जो है वो शांत हो जाएगा। एंड थर्ड थिंग जो है इनको जो है क्या कहते हैं किसी फीमेल ऑर्गेनाइजेशन में 1 ईयर डोनेशन करते रहना चाहिए। Thank you, Premji. So, like Premji is advising you that he foresees that your son, whatever he will do, he'll be very, very successful. His time is coming now. He can get into any kind of finances, any kind of business that he wants. He will do really well. He has to start wearing a diamond, and along with that, he also needs to do the pujas and the remedies that Premji has mentioned. And of course, making sure that the silver elephant that you buy, he has to submerge it under the Ganga Jal in a jar. Shut the lid tight and put it in the temple, so that will calm down his planets. Lekin I have a question from Premji about your son's horoscope. Premji has mentioned something about the 11th house and Ichha Purti. What is the relationship and what is the impact of these two? So 11th हाउस, देखिए 12 हाउसेज होते हैं बर्थ चार्ट के अंदर। जो 11th हाउस है हमारे वो इच्छा पूर्ति का स्थान माना जाता है। इट्स ए हाउस ऑफ डिज़ायर्स। तो कहते हैं अगर आपका लग्नेश लॉर्ड जो है राइजिंग लॉर्ड अगर वहाँ बैठ जाए तो इट मीन्स आप जो भी इनकम लाइफ में चाहते हैं, जो करियर चाहते हैं, जो आपके ड्रीम्स हैं वो सारे 11th हाउस पूरा करके देता है। तो इनका जो राइजिंग लॉर्ड वहाँ बैठा हुआ है और इट मीन्स सो वट एवर द करियर ही वांट्स, हाउ ही वांट्स इट,
अगर ये अपना फोकस और अपनी चीज़ें करें तो ही कैन एबल टू अचीव इट. सो इसलिए 11th हाउस इज़ द मोस्ट पावरफुल हाउस इन द बर्थ चार्ट. That's very interesting to know. Thank you, Premji. Or that was quite information to understand what does Icha Purti mean. However, time now for us to understand from Premji the predictions for the first 4 zodiac signs. Let's find out the predictions for Aries for this week. Premji, what are the predictions for Aries? एरीज यानी मेष राशि वालों के लिए देखिए, इस वीक के अंदर आपको आपके काम पे नोटिस किया जाएगा, अप्रिसिएशन मिलेगा आपको जो आपने एफर्ट लगाए हैं. फाइनेंसेस स्टडी रहेंगे, बट थोड़ा अवॉइड करिएगा क्विक और किसी तरह की भी रिस्की परचेजेस को. एनर्जी थोड़ी अप एंड डाउन रहेगी, अपनी बॉडी का ध्यान रखिएगा, रेस्ट करिएगा. टाइम आपकी फैमिली होम के लिए बहुत ही पॉजिटिव रहेगा और आपको फुल सपोर्ट भी मिलेगी और दिल से करी बातें से काफ़ी सारी क्लैरिटी भी आ जाएगी. टॉरस यानी वृषभ राशि वालों के लिए देखिए, आपके जो कम्युनिकेशन स्किल्स हैं वो काफ़ी स्ट्रांग रहेंगे. वही जो आपके माइंड में है वो पूरी तरह आप बात करिएगा. रिलेशनशिप में अगर आप हैं रोमांटिक और इमोशनल, तो जल्दी में कोई डिसीजन मत लीजिएगा, थोड़ी चीज़ों को टाइम दीजिएगा. आप काफ़ी इंस्पायर्ड करेंगे, एक्सप्लोर करेंगे स्टडी को और ट्रैवल भी करेंगे, पर थोड़ी स्पेंडिंग के ऊपर ध्यान रखिएगा, अपने बजट के ऊपर ही स्टिक रहिएगा. ओपन बातचीत करने से दोस्त से या पार्टनर से, उससे आपके जो बॉन्ड है, रिलेशनशिप हैं, वो काफ़ी स्ट्रांग हो जाएंगे. जेमिनाई यानी मिथुन राशि वालों के लिए देखिए, इस वीक के अंदर आपको चांस मिलेगा लीड करने के लिए, तो आप अपने आप को पूरी तरह एक्सप्रेस करिएगा जैसे भी आप करना चाहते हैं. ट्रस्ट करिएगा अपनी इनर वॉइस को जो आपको गाइड कर रही है कि आप ठीक हैं. सोशल अपॉर्चुनिटीज़ और कम्युनिटी इन्वॉल्वमेंट जो है इस वीक के अंदर काफ़ी बढ़ जाएगी, बट अवॉइड करिएगा किसी तरह भी क्विक मनी डिसीजन के बारे में इस वीक के अंदर खास करके. और अपनी डेली रूटीन को बैलेंस बना के रखिएगा ताकि आप मेंटली एंड फिजिकली दोनों वेल रहें. कैंसर यानी कर्क राशि वालों के लिए देखिए, जो आपके इमोशंस हैं वो काफ़ी हाई रन में रहेंगे, बट ये आपको हेल्प करेंगे टू अंडरस्टैंड कि आप अपने आप को बेटर समझ पाएंगे. नई काम के ऊपर अपॉर्चुनिटीज़ आएगी, कुछ नया रोल मिलेगा जो आपके रास्ते में है. मेक श्योर कि आप रेस्ट करें, ज़्यादा अपने आप को पुश हार्ड मत करिएगा इस वीक के अंदर. टाइम अपने लव्ड वन के साथ अगर आप बिताएंगे, इट विल ब्रिंग पीस एंड इमोशनल सपोर्ट मिलेगा आपको काफ़ी. ट्राई टू बी क्रिएटिव प्रोजेक्ट और समथिंग जो आपको रिलैक्स करने में भी आपकी हेल्प करे. थैंक यू प्रेम जी फॉर द प्रेडिक्शंस. और दोस्तों, प्रेम जी हमारे साथ यही रहेंगे, but don't go too far because when we come back, we'll take more emails. Maybe Prem ji also talks about a question related to that email. Could be the horoscope, could be the zodiac sign, could be exactly what could be going on in your life. So don't go too far. We'll see you right after this short break. Hello and welcome back to One on One with Prem Jyotish ji. Prem ji's taken his time out to be with us in the studio because he believes the remedies, the guidance, and the predictions he's been giving all his clients. You are so extremely excited and happy. You've been following them because, as we all know, after 43 days is when the impact happens. However, I'm going to take the next email because today is a very special email dedicated episode. So let's find out who sent in the next email. और प्रेम जी, अगली email जो आई है, this is from Miss SB. Date of birth is August 21st, 1968. Place of birth is Mumbai, India. Time of birth is 7:30 in the evening. She's a regular viewer of the show and she wants you to give her the guidance. As she says, she has complaints of inflammations in her heart. Her CRP was very high. The doctors sent her for 2 echo results, but they came back normal. She still feels the pain in her chest and she has an appointment to see her doctor in the next 2 weeks. But she wants to know what is it that she really needs to do. Will she become better or there is a major health hurdle? Because she's very worried and needs your help and guidance. देखिए मिस एसबी, अगर आप 21 अगस्त 1968, इनका मुंबई 7:30 PM शाम का बर्थ है जी. इनका एक्वेरियस राइजिंग है और मून साइन इनका कैंसर है. कुंभ लगन है और कर्क राशि है इनकी. कुंभ लगन का लॉर्ड होता है शनि, राशि का लॉर्ड है इनके चंद्र, और शी इज गोइंग थ्रू शुक्र दशा एंड वीनस में मरकरी ट्रांजिट कर रहा है. देन वीनस दशा इज ऑल्सो एंडिंग जुलाई 2027 के अंदर. फिर इनको सूर्य दशा आ जाएगी.
जो कि 2027 से लेके 2033 तक का टाइम है। मरकरी जब से ट्रांजिट कर रहा है, मार्स इज रिलेटेड टू योर हार्ट, योर इन्फ्लेमेशन, आपकी आर्टरीज को देखता है जी हेल्थ के अंदर। तो टाइमिंग थोड़ी हेल्थ को लेके इनकी थोड़ी कंसर्न वाली रहेगी, खास करके इनको 2027 जुलाई तक थोड़ा ध्यान रखना पड़ेगा। अच्छा, अगर इस पीरियड में अगर इन्होंने अपनी लुक आफ्टर अच्छे से कर ली देन शी विल गो लॉन्ग वे, क्योंकि आगे जो सूर्य दशा भी है तो सन तो सैटर्न का ऑपोजिट होता है, तो बेसिकली फिर उसको हम कहते हैं जी कि सूर्य ग्रहण लग जाता है, देन इट्स नॉट ए गुड, देन यू गो थ्रू लॉट ऑफ टाइम अंडर द नाइफ एंड कई बार हम सर्जरीज या इस तरह की चीज़ों में भी चले जाते हैं। बट दिस इज़ द टाइम वेयर जिसमें, क्योंकि बुध जो है अगर चीज़ें ख़राब भी करता है तो वो ठीक करके भी जाता है। तो अभी टिल जुलाई 2027 में इनकी टाइमिंग ठीक है, जिसमें शी कैन गेट इट थिंग्स फिक्स्ड, अपनी लाइफ को वो ठीक कर सकते हैं। लेकिन थोड़ा रिलीफ इनको मिलेगा इस साल अगस्त के बाद से, बट स्टिल शी नीड्स टू कीप एन आई ऑन एवरीथिंग। so Premji, she's very concerned. She's also very worried about, any kind of surgery that she may have in the future. So what would you recommend for her to ease her down, ease her planets out, and any stones that she needs to wear? देखिए, एक तो इनको जो है एमरल्ड पहन के रखना चाहिए 5 to 6 कैरेट का अपनी राइट हैंड की लिटिल फिंगर में। उसको वेंसडे के दिन सुबह 7 से 8 बजे के बीच में पहने, जिससे इनका जो है मरकरी जो है वो पॉजिटिव रहे जी। दुर्गा चालीसा करें वेंसडे के दिन, चाहे आप रोज़ भी कर सकते हैं। और किसी फीमेल ऑर्गेनाइजेशन में इनको डोनेशन देते रहना चाहिए। और वंस ए मंथ इनको मस्टर्ड ऑयल में अपने फेस की रिफ्लेक्शन भी देखते रहना चाहिए, क्योंकि शनि इनका राइजिंग लॉर्ड है। तो जैसे ये मस्टर्ड ऑयल को किसी स्टील बाउल में डालेंगे, अपना चेहरा देख के फिर उसमें एक लौंग डाल के बाहर किसी पेड़ या पत्थर पे गिरा दे, तो उससे जी काफ़ी बड़ा पॉजिटिव इम्पैक्ट आ जाएगा। Thank you, Premji. So Premji is also agreeing with you. You're going through a tough time, and he foresees your tough time will continue as long as you're able to handle it and do the correct procedures before 2027. Because after that, things will turn around and be better for you. So you have to be very careful for the next 2.5 years. In the meantime, Premji is suggesting for you to start wearing an emerald on Wednesday, be vegetarian and do Durga Chalisa, do Durga Puja, and also do a female organization, some kind of donation for food, money, clothes, something that would calm down your planets. And don't worry, things will work out for you. और दोस्तों, अब वक्त आ गया for us to understand from Premji the predictions for the next 4 zodiac signs. So let's find out the predictions for Leos for this week. Premji, what are the predictions for Leos? लियो यानी सिंह राशि वालों के लिए देखिए ये अच्छा टाइम है टू रिफ्लेक्ट योर गोल्स, और किसी तरह की भी जो क्वाइट प्रोग्रेस आप करना चाहते हैं। स्पिरिचुअल टाइम आपको काफ़ी हेल्प करेगा, जिससे आप काफ़ी अपने आप को सेंटर फील करेंगे। फैमिली और होम से आपको थोड़ी सी केयर और थोड़ी अटेंशन की ज़रूरत है। थोड़ा जेंटल रहिएगा अपने इमोशंस को लेके, रश मत करिएगा पर्सनल डिसीजन को लेके, रेस्ट करिएगा जितना आप कर सकते हैं, क्योंकि बैलेंस इज़ द की दिस वीक। वर्गो यानी कन्या राशि वालों के लिए देखिए किसी कोई पास रिलेशनशिप या किसी दोस्त से आप रिकनेक्ट करेंगे। जो पास रिलेशनशिप है वही आपके हेल्प करेंगे आगे लाइफ में आगे बढ़ने के लिए। आपकी जो क्रिएटिविटी है वो इस वीक के अंदर फ्लो करेगी, तो उसको यूज़ करिएगा अपनी हॉबीज़ और अपने काम के लिए। अपनी हेल्थ के ऊपर रूटीन चेक करके रखिएगा, क्योंकि लाइफ काफ़ी बिजी होने वाली है आप लोगों की। ग्रोथ होगी आपकी इस वीक के अंदर, वो भी बहुत पॉजिटिव से होगी, लेकिन ट्रस्ट करिएगा जो प्रोसेस में है आप। लिब्रा यानी तुला राशि वालों के लिए देखिए थोड़ा ऑनेस्ट और रियल रहिएगा अपने काम के ऊपर। लोग आपको काफ़ी अप्रिशिएट करेंगे आपकी ओपननेस को लेके। शेयरिंग योर स्टोरी से किसी की स्ट्रगल में हेल्प हो सकती है, तो ज़रूर करिएगा। नए प्रोजेक्ट टास्क जो है हैंड किए जाएंगे आपको, लेकिन आप स्टेप अप करेंगे कॉन्फिडेंस के साथ। थोड़ा टाइम रेस्ट भी करिएगा, फन करिएगा आउटसाइड ऑफ योर रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ के साथ। थोड़ी टेंशन दीजिएगा बोथ अपनी फिजिकल एंड इमोशनल हेल्थ को भी। स्कॉर्पियो यानी वृश्चिक राशि वालों के लिए देखिए इस वीक के अंदर जो भी आपकी इंस्टिंक्ट्स हैं उसके ऊपर आप ट्रस्ट करिएगा, वही आगे चल के आपको लीड करेगा राइट डायरेक्शन में। थोड़ा टाइम दीजिएगा, फाइनेंशियल डिसीजन को लेके रश मत करिएगा। आप किसी ऐसे व्यक्ति से मिलेंगे, ऐसा एक्सपीरियंस होगा जिसमें आपका जो भी पर्सपेक्टिव है वो सारा शिफ्ट कर जाएगा। अगर काम में आपको स्ट्रेसफुल फील होता है
तो थोड़ा अपने आप के माइंड को काम रखिएगा, फोकस बना के रखिएगा, ये इस टाइम भी आपका निकल जाएगा। रेगुलर मूवमेंट और एक्सरसाइज से आपको काफ़ी हेल्प होगा, आपकी माइंड की क्लैरिटी आ जाएगी। Thank you, Premji, for the predictions. Or dosto, Premji gives you predictions just as an umbrella to hold you for the next week, because we do an episode every week. So if you missed this week or you missed last week, we always have another one for next week. However, if you want your horoscope read on our show, quickly write into us at prem@premjyotish.net. See you right after this short break. Hello and welcome back to One on One with Prem Jyotishji. Premji's taken his time out to be with us in the studio because today's a very special email dedicated episode where you have written into us with your worries and concerns, and I will read those emails out and Premji will give you the best remedies and guidance as per your birth chart. So let's find out who sent in the next email. Premji, agli email jo aayi hai. This is from Miss C. Her date of birth is Jan 11th, 1990. Place of birth is Vadodara, Gujarat. Time of birth is 2:31 in the afternoon. Writing to get the insight for their daughter. They want to know, what does her future look like to you for her? Will she get settled? Will she have a married life? How will her relationship be with the parents, which is currently not too good right now? They want to also know about the health and her overall future, and they're very worried about all the aspects surrounding her life, and they want your help and remedies. देखिए मिस सी, अगर आप जनवरी 11 1919 का वडोदरा गुजरात 2:31 PM का बर्थ है, Right. शी इज़ ए टॉरस राइजिंग है और इनका मून साइन जो है वो जेमिनाई है। वृषभ लगन है और मिथुन राशि है इनकी। एंड वृषभ लगन का लॉर्ड होता है शुक्र, राशि का लॉर्ड है बुध। तो इनको बुध की दशा चल रही है और मरकरी में इस वक्त राहु का इम्पैक्ट चल रहा है, जो कि 2023 अप्रैल से है। राहु जो है बेसिकली इनके वीनस के साथ इनके 9th हाउस में बैठा हुआ है। तो राहु जब शुक्र के साथ बैठ जाता है तो बेसिकली इट कॉजेज वीनस इज अ प्लैनेट ऑफ रिलेशनशिप, सो राहु मेक्स डिफरेंसेस। राहु की वजह से आप बहुत एंग्शियस, पर्सनैलिटी नेगेटिव हो जाती है और यू आर सराउंडेड बाय द रॉन्ग क्राउड टू, तो जिसका इम्पैक्ट जो है आपकी पर्सनल लाइफ पे, फैमिली पे भी पड़ता है। तो शी इज़ गोइंग थ्रू दैट एंड विच इज़ अनफॉर्चुनेटली देयर टिल 2028 टिल February। एंड तब तक का जो टाइम है वो थोड़ा इनका बेसिकली इतना ग्रेट नहीं है। इसी की वजह से रिलेशनशिप में हारमनी नहीं रहेगी किसी के साथ। Right. एंड बट इनके बेसिकली शादी के जो योग है वो भी उसमें डेफिनेटली चेंजेस आने शुरू हो जाएंगे इस साल नवंबर के बाद से, क्योंकि जैसे ही मरकरी जुपिटर में एंटर करेगा तो उस वक्त रिलेशनशिप एरिया में इनकी लाइफ में चेंजेस आने शुरू हो जाएंगे पर्सनली, बट जो मैरिज है वो 2028 से पहले नहीं। So, Premji, any remedies to calm all that situation and for her to build a better relationship with the sibling and parents? What would you recommend for her to do? देखिए, एक तो इनको डायमंड पहन के रखना चाहिए अपनी राइट हैंड की मिडिल फिंगर में। उस प्रिंसेस कट हो उसको वाइट मेटल में फ्राइडे के दिन सुबह 7 से 8 बजे के बीच में पहने, जिससे इनका जो लग्नेश लॉर्ड जो है वो स्ट्रांग हो जाए। राहु ट्रांजिट में है तो राहु के लिए क्या करना चाहिए, थोड़ा गंगा जल जैसे बिफोर शी टेक शावर थोड़ा सा सर पे डाला जाए। अच्छा। या इनके रूम में क्या कहते हैं गंगा जल को किसी बॉटल में और उसमें 90 ग्राम्स का सिल्वर का कोई क्वाइन या कोई पीस रख दिया जाए ताकि राहु इम्पैक्ट जो है वो शांत हो जाए। एंड थर्ड थिंग जो है इनकी फैमिली इनकी तरफ से किसी फीमेल ऑर्गेनाइजेशन में डोनेशन दे, क्योंकि वीनस है लॉर्ड और राहु साथ में है तो वो तो जो रिलेशनशिप एरिया को वो काफ़ी पॉजिटिव करेगा। एंड अगर कोई इनके लिए फास्ट भी कर दे फ्राइडे के दिन, सो दैट कैन ब्रिंग लॉट ऑफ पॉजिटिव। So, Premji, somebody should do the fast for her, but what if she does it herself? Would that be more impactful? देखिए, पेरेंट्स कैन डू एनी रेमेडी फॉर द किड्स। अगर कई बार अलाइनमेंट नहीं है, आप हारमनी नहीं है एक दूसरे, सो देन यू कैन डू ऑन द बिहाफ ऑफ दैट। Thank you, Premji. So, like Premji is advising you that, things always happen with parents and children. There always fights, ups and downs. She needs to feel the security that her parents will always be there for her. So, you need to show her your unconditional love. Along with that, you need to make sure she starts wearing a diamond. There should be a female donation that the parents can do
Along with that, like a silver coin, like Premji mentioned, put it in a Ganga Jal, shut it with a lid, and put it in the temple. That'll take care of the Rahu and the other remedies that Premji has mentioned. And if any of you can be vegetarian for her on Friday, and then eventually she can be vegetarian on Fridays, that'll go a long way for her marriage and her health. और दोस्तों, अब वक्त आ गया for us to understand from Premji the predictions for the last 4 zodiac signs. So let's find out the predictions for Sagittarius for this week. Premji, what are the predictions for Sagittarius? Sagittarius यानी धनु राशि वालों के लिए देखिए बहुत ही ग्रेट वीक है टू पॉज एंड थिंक अबाउट व्हाट यू रियली वांट इन द लाइफ। आपको थोड़ा सा अपना बजट ट्वीक करना पड़ेगा ताकि आप अपनी स्पेंडिंग को रीथिंक करें। ऑनेस्ट कन्वर्सेशन आपके लव्ड वन के साथ बहुत ही लॉन्ग वे चलेगा। क्रिएटिव और जो पर्सनल प्रोजेक्ट है वो आपको काफ़ी एक्साइट करेगा, तो उसके पीछे आपको जाना चाहिए। स्टे एक्टिव रहिएगा ताकि आपकी लाइफ जो है, मूड और एनर्जी जो है पॉजिटिव रहे। कैप्रिकॉन यानी मकर राशि वालों के लिए देखिए आपकी जो सिचुएशन है आप दूसरे लोगों के पॉइंट ऑफ व्यू से देखिए तो काफ़ी हेल्प मिलेगा आपको। थोड़े अपने गार्ड्स को डाउन करके रखिएगा। कोई क्लोज आपके ऐसा है जो डीपन कनेक्शन चाहता है। दूसरे लोगों के साथ काम करके बेटर रिजल्ट मिलेंगे रादर देन गोइंग इट अलोन। डोंट गेट टू रैप्ड अप, काम के ऊपर ज़्यादा रैप्ड अप मत होइएगा। पर्सनल टाइम भी मैटर करता है इस वीक के अंदर। अपनी वेलनेस हैबिट को स्ट्रांग रखिएगा। माइंड बॉडी दोनों को आपकी ज़रूरत है। एक्वेरियस यानी कुंभ राशि वालों के लिए देखिए आप काफ़ी फील बेटर करेंगे अगर आप थोड़ी सी क्रिएटिविटी अपनी डेली रूटीन में डाल लें। थोड़ा अवेयर रहिएगा अपने इमोशनल स्ट्रेस को, क्योंकि वो बढ़ता ही जा रहा है। उसके लिए आपको बातचीत करने की ज़रूरत है। ज़्यादा अपने आप को बर्न आउट मत करिएगा। थोड़ा समय अपने आप को डाउन टाइम में भी दीजिएगा। ट्राई लर्निंग समथिंग न्यू, टॉकिंग टू अ डिफरेंट अप्रोच, टेकिंग ए डिफरेंट अप्रोच टू डिफरेंट टास्क, वो आपको काफ़ी हेल्प करेगा। फ्रेंड से बातचीत करने से आपकी स्पिरिट्स में आपको कोई अच्छी एडवाइस भी मिल सकती है। एंड पाइसेस यानी मीन राशि वालों के लिए देखिए ग्रेट वीक है आप लोगों के लिए। क्रिएटिव एक्सप्रेशन, पेंट, राइट जो है, जो भी आप करना चाहते हैं। रोमांस सरप्राइज करेगा और या समवन कुड कैच योर आइज टू। टेक टाइम टू थिंक अबाउट ट्रूली व्हाट मेक्स यू हैप्पी। थोड़ा सोचिए अपने बारे में। क्वाइट मोमेंट्स, रेस्ट विल रिफ्रेश योर मेंटल स्टेट एज वेल टू। कोई भी आप काम करें, चाहे वो छोटी सी भी चीज़ है, जिससे आपको खुशी मिले। Thank you, Premji. You came to the studio. You told all the viewers exactly what is needed and what exactly is not going right, and the reason why it's not going right, because your planets are not positioned and aligned properly. Premji has given you remedies to do, so make sure you do them diligently. Or dosto, now we are going to take your leave. Lekin jaane se pehle, like we always remind you, if you want your horoscope read on our show, quickly write into us at prem@premjyotish.net. This is Meher Bhasin along with Premji saying Namaste. See you next week.